اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ ہاشم بینگوار نے تجاوزات کارروائی کرتے ہوئے شاہراہ لیاقت پر جنریٹر مارکیٹ کی 50 دکانیں سیل کر دیں۔ 4 روز گزرنے کے باوجود دکانیں نہ کھل سکیں، جس کے باعث تاجروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر مشینری کی مرچنٹ گروپ خرم سہگل کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے ضابطہ کار پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ کا تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن۔ شاہراہ لیاقت جنریٹر مارکیٹ کی 50 دکانیں سیل کر دیں۔ 4 دن گزر گئے، کاروباری سرگرمیاں تاحال معطل۔ صدر مشینری مرچنٹ گروپ خرم سہگل کا کہنا ہے کہ تاجر تجاوزات کے خلاف ہیں، تاہم سیل کی گئی دکانیں کھولی جائیں کیونکہ کاروبار بند ہونے سے شدید معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری انتظامیہ کی جانب سے طے کی گئی SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ زیادہ تر دکانیں شو رومز وغیرہ بھی ہیں، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ یقیناً ہر جگہ پہ 1% 2% اگر یہاں کوئی لوگ بھی ہیں، تو ہمارے صرف یہ ریکویسٹ ہے اتھارٹیز کے ساتھ کہ بھائی 1-8% یا 2% کے لیے ان کو جو لو ابائڈنگ سٹیزن ہے، لو ابائڈنگ بزنس مین ہے، ان کو پینلائز نہ کیا جائے۔ اور آئی تھنک یہ چیز وہ انہوں نے ایشورنس بھی دی ہے ہمیں اتھارٹیز ہے کہ کوئی بھی جو لو ابائڈنگ ہے نا، ان کو پینلائز نہیں کیا جائے گا۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرے اور بند دکانیں کھولنے کی اجازت دے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ مسلسل بندش سے نہ صرف تاجروں بلکہ مزدوروں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ رمضان ہے اور رمضان سے پہلے دیکھیں یہ اس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے، ان کو کوشش کرتے کہ ان کو پہلے ایک لیٹر دینا چاہیے تھا، پراپر طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ اس طرح سے یہ ہے، آپ لوگوں نے وہ انکوائرمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا سامان باہر نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ پہلے سے ہمیں بتا دیتے تو ہم ہر چیز اندر سے قانون کے حساب سے ہم کارروائی اس پہ کرتے۔ دور سے خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں، مارکیٹ بند ہے، یہ ظلم ہے دکانوں والوں سے، اور اس کو کھولا جاوے اور رمضان سے پہلے کھولا جاوے۔ تاجروں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب بارش کا پانی سڑک پر کھڑا ہو گیا، ٹریفک کا نظام متاثر رہا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی جمع ہونے کے بعد انتظامیہ کو ہوش آ گیا، عملے کی جانب سے نکاسی آب اور ٹریفک کو معمول پر لانے کے اقدامات کیے گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں نکاسی آب کے مستقل انتظامات نہ کیے جا سکے۔ ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب بارش کا پانی جمع ہو گیا، ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، گاڑیاں رینگتی رہیں۔ پانی جمع ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی، ٹاؤن عملے نے پہنچ کر ٹریفک کنٹرول اور پانی کی نکاسی شروع کر دی۔ فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر سینٹرل ظہیر احمد خان بولے، رین ایمرجنسی کے تحت عملہ مسلسل موجود رہے گا۔ برسات ہوئی پورے کراچی کے اندر اور 10 منٹ کی برسات ہوئی، ہماری ٹیم موجود ہے، ناظم آباد کی ٹیم موجود ہے، اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور اس وقت ٹریفک کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ۔ ریسکیو کے عملے کا کہنا تھا کہ ناظم آباد میں 2 جگہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے جہاں پہلے ہی عملہ اور مشینری تعینات کیا گیا۔ گولی مار کی طرف ایک طرف ہے اور یہ عیدگاہ کی طرف ہے کہ یہاں پہ 2 مقامات پہ کام ہو رہے ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ کے ہمارے عملہ بھی موجود ہے، تینوں ڈپارٹمنٹ اس وقت موجود ہے روڈ پہ اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شہر میں ہونے والی معمولی بارش نے ٹریفک کا نظام درہم برہم کر دیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ رمضان سے قبل تیز ہواؤں کے ساتھ باران رحمت، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، کہیں ژالہ باری۔ یونیورسٹی روڈ سے ناظم آباد اور انگی بلدیہ نیول کالونی میں بارش، مزید سائٹ ایریا بنارس گلستان جوہر میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ گلشن اقبال اسٹیڈیم روڈ حسن سکائر میں بھی بادل برس پڑے، سب سے زیادہ جناح ٹرمینل پر 20 ملی میٹر بارش ہوئی، پاپوش نگر میں 8.5، یونیورسٹی روڈ پر 5.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نارتھ کراچی میں 2.3 اور سپر ہائی وے پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں کی گرج کراچی کی فضا آج بھیگتی رہی۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری نے موسم کو اور بھی خوشگوار بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ جناح ٹرمینل پر 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ فیصل بے ایس ٹی روڈ پر 5.8 ملی میٹر پانی برسا۔ نارتھ کراچی میں 2.3، جبکہ سب سے کم بارش سرجانی ٹاؤن اور اولڈ ایریا ایئرپورٹ پر صرف 1 ملی میٹر بارش
बारिश रिकॉर्ड की गई। आसमान से गिरते ओले, सड़कों पर दौड़ता पानी, कहीं बच्चे खुशी से नहाते नजर आए तो कहीं ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। शहरी दुआ गो हैं कि माह रमजान में भी मौसम इसी तरह सुहाना रहे। कराची बादलों के चादर ओढ़े दिखाई दिया, बारिश की खुशबू से महक उठा। अक्सा शेख, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान बरकरार रहा। कारोबार मंदी पर ही बंद हुआ। 100 इंडेक्स से 1303 पॉइंट्स कमी के बाद 1,73,150 पर आ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1300 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ, जहां KSI 100 इंडेक्स 1303 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,73,150 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,76,131 जबकि कम तरीन सतह 1,71,693 रही। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के बायस फरोख्त का दबाव देखने में आया, जिसके नतीजे में इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। चूंकि आज ऐसा महसूस हो रहा है मार्केट को देखते हुए कि शायद हो सकता है कि इनकी सेलिंग आज शायद खत्म हो जाए और म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बाइंग भी कर ले, इस वजह से मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा डिपेंड ये करता है कि मार्केट के जो रिजल्ट्स आने हैं कंपनियों के, वो भी ड्यू हैं सारे हाफ ईयरली के, वो भी डिपेंड करता है मार्केट पे क्या आएंगे, तो उससे भी मार्केट को इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा, तो मार्केट इंशाल्लाह आपको आगे जाती हुई नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,74,453 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हाई कोर्ट आईनी बेंच ने PCHS तामीरात केस की समाअत की। अदालत ने SBCA को कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 25 मार्च तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की का मामला सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बरहमी जाहिर की। अदालत ने आशिक अली लांगा के ओहदे का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। खातून का मुबैना अगवा, जबरदस्ती शादी करने और ज्यादती का मुकदमा। सेशन अदालत शर्की ने 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मामला। 7000 रोड के दुकानदारों की ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि दुकानदारों को बेदखल करना है तो पहले मुआवजा अदा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड एपलेट ट्रिब्यूनल बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आफ्ताब गोरड़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई काबीना के नोटिफिकेशन में कोई कानूनी सुकम नहीं है। तहरीरी फैसले में पॉलिसी मामलात में मुदाखलत मुस्तरद कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग हाशिम बेंगवार ने तजावुजात कार्रवाई करते हुए शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट की 50 दुकानें सील कर दी। 4 रोज गुजरने के बावजूद दुकानें ना खुल सकी, जिसके बाइस ताजरों को माली मुश्किलात का सामना है। सदर मशीनरी की मर्चेंट ग्रुप खुरम सहगल का कहना है कि इंतजामिया के ज़ाब्ताकार पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए तैयार है। काविश मेमन की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग का तजावुजात के खिलाफ सख्त एक्शन। शाहराह लियाकत जनरेटर मार्केट की 50 दुकानें सील कर दी। 4 दिन गुजर गए, कारोबारी सरगर्मियां ताहाल मुअत्तल। सदर मशीनरी मर्चेंट का ग्रुप खुर्रम सहगल का कहना है कि ताजिर तजावुजात के खिलाफ हैं, ताहम सील की गई दुकानें खोली जाएं क्योंकि कारोबार बंद होने से शदीद मुआशी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी इंतजामिया की जानिब से तय की गई SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने के लिए तैयार है। ज़्यादातर दुकानें शोरूम्स वगैरह भी हैं, तो असल में क्या होता है कि कुछ यकीनन हर जगह पे 1% 2% अगर यहाँ कोई लोग भी हैं, तो हमारे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ के साथ कि भाई 1-8% या 2% के लिए ये उनको जो लो अबाइडिंग सिटीजन है, लो अबाइडिंग बिजनेसमैन है, उनको पेनलाइज ना किया जाए। और आई थिंक ये चीज़ वो उन्होंने एश्योरेंस भी दी है हमें अथॉरिटीज़ है कि कोई भी जो लो अबाइडिंग है ना, उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मामलात को बातचीत के जरिए हल करे और बंद दुकानें खोलने की इजाज़त दे ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। मुसलसल बंदिश से न सिर्फ ताजिरों बल्कि मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। रमज़ान है और रमज़ान से पहले देखे ये इस तरह से इन्होंने ये किया है। इनको कोशिश करते कि इनको पहले एक लेटर देना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए था कि भाई ये इस तरह से ये है, आप लोगों ने वो इनक्वायरमेंट किया हुआ है कि आप इस तरह से अपना सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है। अगर ये पहले से हमें बता देते तो हम हर चीज़ अंदर से कानून के हिसाब से हम कार्रवाई उस पर करते। दूर से खरीदारी करने के लिए आए हैं, मार्केट बंद है, ये जुल्म है दुकानों वालों से और इसको
खोला जावे और रमज़ान से पहले पहले खोला जावे। ताजिरों ने इंतजामिया से अपील की है कि मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब बारिश का पानी सड़क पर खड़ा हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी जमा होने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। अमले की जानिब से निकासी आब और ट्रैफिक को मामूल पर लाने के इक़दाम किए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में निकासी आब के मुस्तकिल इंतजामात न किए जा सके। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, गाड़ियां रेंगती रही। पानी जमा होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। टाउन अमले ने पहुंचकर ट्रैफिक कंट्रोल और पानी की निकासी शुरू कर दी। फोकल पर्सन डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जहीर अहमद खान बोले, रैन इमरजेंसी के तहत अमला मुसलसल मौजूद रहेगा। बरसात हुई पूरे कराची के अंदर और 10 मिनट की बरसात हुई। हमारी टीम मौजूद है, नाज़माबाद की टीम मौजूद है, अपने फराइज अंजाम दे रही है और इस वक्त ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ। रेस्क्यू के अमले का कहना था कि नाज़माबाद में 2 जगह बारिश का पानी खड़ा होता है, जहाँ पहले ही अमला और मशीनरी तैनात किया गया। गोली मार की तरफ एक तरफ है और ये ईदगाह की तरफ है कि यहाँ पे 2 मकामात पे काम हो रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट के हमारे अमला भी मौजूद है। तीनों डिपार्टमेंट इसमें इस वक्त मौजूद है रोड पे और अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। शहर में होने वाली मामूली बारिश ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। कैमरामैन आगा रफीक के हमराह रिजवान अहमद, सिटी 21। रमज़ान से कबल तेज़ हवाओं के साथ बरान रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, कहीं सालाबारी। यूनिवर्सिटी रोड से नाज़माबाद और अंगी, बल्दिया, नेवल कॉलोनी में बारिश। मजीद साइट एरिया बनारस गुलिस्तान जौहर में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड, हसन सुकायर में भी बादल बरस पड़े। सबसे ज़्यादा जिन्ना टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर बारिश हुई। पापोश नगर में 8.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 2.3 और सुपर हाईवे पर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अक्सा शेख की रिपोर्ट। काली घटाएं, ठंडी हवाएं और बादलों की गरज कराची की फिजा आज भीगती रही। मगरबी हवाओं के जेरे असर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, जबकि बाज मकामात पर जालाबारी ने मौसम को और भी खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा जिन्ना टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बे स्ट्री रोड पर 5.8 मिलीमीटर पानी बरसा। नॉर्थ कराची में 2.3, जबकि सबसे कम बारिश सरजानी टाउन और ओल्ड एरिया एयरपोर्ट पर सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आसमान से गिरते ओले, सड़कों पर दौड़ता पानी, कहीं बच्चे खुशी से नहाते नजर आए तो कहीं ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। शहरी दुआ गो हैं कि माह रमजान में भी मौसम इसी तरह सुहाना रहे। कराची बादलों के चादर ओढ़े दिखाई दिया, बारिश की खुशबू से महक उठा। अक्सा शेख, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान बरकरार रहा। कारोबार मंदी पर ही बंद हुआ। 100 इंडेक्स से 1303 पॉइंट्स कमी के बाद 1,73,150 पर आ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1300 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ, जहां KSI 100 इंडेक्स 1303 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,73,150 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,76,131, जबकि कम तरीन सतह 1,71,693 रही। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के बायस फरोख्त का दबाव देखने में आया, जिसके नतीजे में इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। क्योंकि आज ऐसा महसूस हो रहा है मार्केट को देखते हुए कि शायद हो सकता है कि इनकी सेलिंग आज शायद खत्म हो जाए और म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बाइंग भी कर ले। इस वजह से मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा डिपेंड ये करता है कि मार्केट के जो रिजल्ट्स आने हैं कंपनियों के, वो भी ड्यू हैं सारे हाफ ईयरली के, वो भी डिपेंड करता है मार्केट पे क्या आएंगे। तो उससे भी मार्केट को इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा, तो मार्केट इंशाल्लाह आपको आगे जाती हुई नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,74,453 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
हाई कोर्ट आईनी बेंच ने PCHS तामीरात केस की समाअत की। अदालत ने SBCA को कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 25 मार्च तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की का मामला सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बरहमी जाहिर की। अदालत ने आशिक अली लांगा के ओहदे का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। खातून का मुबैना अगवा, जबरदस्ती शादी करने और ज्यादती का मुकदमा। सेशन अदालत शर्की ने 8 मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मामला। 7000 रोड के दुकानदारों की ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि दुकानदारों को बेदखल करना है तो पहले मुआवजा अदा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड एपलेट ट्रिब्यूनल बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आफ्ताब गोरड़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई काबीना के नोटिफिकेशन में कोई कानूनी सुकम नहीं है। तहरीरी फैसले में पॉलिसी मामलात में मुदाखलत मुस्तरद कर दी गई।